I'm in the assembly. Today, February 16th, Chief Minister Siddaramaiah has announced his historical 15th budget overtaking Ramakrishna's Hegde record. And this budget is more than 3,30,000 crores. And we are just, the proceedings are going on. I've just come out to say this. I'll just speak about detailed budget tomorrow. Today I'm just giving the highlights. It's a populist budget, used the Lok Sabha elections, and he's giving 3,500 crores to the Minority Development Corporation. And he has also given a lot of funds to the Bangalore development, for the tunnel road and for the making of the roads. And we at Nashevan have spoken to various ministers in this regard and taken the reaction. And during this budget, the BJP staged a walkout alleging that discrimination been done. What allegation has been done by the Congress that central government is discriminating the state government in allotting funds. The BJP alleged that Siddaramaiah and his government are spreading false news, and in this regard they boycotted the budget. This is the first time opposition is entirely boycotting the budget session. They staged a walkout and they said that this budget is of no use and it's an anti-poor budget. And coming to the view of the Lok Sabha election, Siddaramaiah has just played to the galleries and to the appeasement. You can see the highlights of the budget in my Nashevan.in news, and we'll get more of the budget and more of the highlights tomorrow after seeing the full book. It's a book where all the budget has been done. For the first time, the Constitution has been printed. The preamble of the Constitution has been printed on the budget book. This is the first time, and we'll get you more highlights tomorrow, and we'll be highlighting what are the where the budget has gone. Till then, keep watching Nashevan News, and I'll be putting, after this video, I'll be putting reactions of some ministers who have spoken to Nashevan News. Rizwan Hasan, Nashevan News. ठीक से प्रेजेंट नहीं करते हैं सेंटर के साथ और बजट में अब ये कह रहे हैं कि सेंटर ने राज्य के साथ धोखा किया। देखिए, बीजेपी वालों को शर्म से डूब मर जाना चाहिए कि केस का क्या मतलब होता है कि अगर कोई आदमी कमज़ोर है और केस ठीक से नहीं लड़ पाया तो आप उसके साथ इंसाफ नहीं करोगे। ये मेरा पूछना है। हम जब पूरे देश में कर्नाटका सेकेंड हाईएस्ट टैक्स पेइंग कंट्रीब्यूटिंग स्टेट है तो हमें सबसे कम टैक्स वापस क्यों दिया जा रहा है? हमारा शेयर हम मांग रहे हैं। फाइनेंस कमीशन का जो रिकमेंडेशन था 11,500 करोड़ कॉम्पनसेशन दिया जाए कर्नाटका को क्योंकि उनको नुकसान हुआ है जीएसटी के ज़रिए, तो वो हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है? और हर फाइनेंस कमीशन में हमारा तो आपने कम कर दिया, हमारा शेयर 4.5% से आपने 3.6 कर दिया, लेकिन गुजरात का 51% बढ़ा दिया। तो ये क्या बात हुई? आप जो सबसे ज़्यादा पैसा आपको देता है टैक्स के रूप में, उस स्टेट को आप कटौती कर दो, और गुजरात क्योंकि आपका स्टेट है आप उसको 51% बढ़ा दो। और कर्नाटका के जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, सूखा पड़ा है, एनडीआरएफ से हमने नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फंड का 18,000 करोड़ रुपए का कॉम्पनसेशन हमने मांगा था। प्रधानमंत्री ने खुद अश्योर किया था कि मैं इसको ज़रूर से देखूंगा जब हमारे चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब मिले थे। तो आपने आज तक 1 रुपया नहीं दिया। तो शर्म से डूब मरो बीजेपी वाले। कर्नाटका से वोट लेते हो, एमपी जीत कर जाते हो, कर्नाटका के किसानों का, नौजवानों का, भविष्य का कोई, जैसा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारा खून चूस के लेके जा रही थी, ऐसा आज सेंट्रल गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट कर्नाटका से टैक्स लेकर जा रही है और वापस नहीं। बीजेपी कहना है कि आप झूठ बोल रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कुछ नहीं हुआ, या पॉलिटिकल ये बोल रहे हैं। ये आंकड़े आपको बताएंगे। सर एक सवाल, बजट की बात हो रही है। फिजिकल डेफिसिट एक्ट बनाया गया है। जो आपका बजट बनता है तो फिजिकल डेफिसिट एक्ट ये कहता है कि 3% तक ही आप उसको उधार ले सकते हैं, आई मीन उसको आप वायलेट कर सकते हैं। तो हमारा 3% के अंदर है, और 25% स्टेट का जो जीएसडीपी है उसी के अंदर हम उधार ले सकते हैं, वो भी अंदर है। ये सबसे बढ़िया बजट है। हम गारंटी का भी पैसा दे रहे हैं। हमने एक अच्छा बजट दिया है जो फिजिकल डेफिसिट एक्ट वायलेट नहीं करता, और सबसे ज़्यादा उधारी हमने नहीं ली है दूसरों के जैसे, और एक डिसिप्लिन बजट हमने दिया। एक सवाल और है, ये जो बात
गई थी कि मुद्राई डिफरेंट रिलीजियस प्लेसेस के लिए दिया, लेकिन इस प्रस्ताव का कोई जिक्र नहीं। देखिए, जितना बजट मैक्सिमम लोगों को जा रहा है, संख्या के हिसाब से हर समुदाय को जा रहा है। 85% हिंदू समुदाय को भी जा रहा है, छोटे अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनको भी जा रहा है, उन्हीं के पॉपुलेशन के हिसाब से जा रहा है। तो बल्क ऑफ द बजट जो फ़ायदा होगा 85%, वो जो पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा हिंदू समुदाय उन्हीं को हो रहा है। तो ये हिंदू मुस्लिम करना बीजेपी की आदत है और वो आदत से मजबूर है। अगर वो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद बीजेपी नहीं करेगी तो बीजेपी ख़त्म हो जाएगी और उनकी राजनीति ख़त्म है। तो इसलिए वो उनकी राजनीति बचाने के लिए समाज में आग लगा दो, देश में आग लगा दो, तोड़ दो फोड़ दो, बीजेपी भी यही आता है। सर, बीजेपी के ही एक नेता का बयान सामने। अनंत कुमार हेगड़े जी पिछले 5 साल से सोए हुए थे, बयान तो दिया नहीं, काम तो किया नहीं। 2 महीने में चुनाव है, चुनाव के लिए उनको तैयार होना है और उनके पूरे बॉडी में विश्व के पॉइजन के अलावा कुछ है ही नहीं। तो अब जिसके बॉडी में पॉइजन है वो उसकी ज़ुबान से पॉइजन ही निकलेगा ना। तो अनंत कुमार हेगड़े जी पॉइजनस आदमी है, वो पॉइजन डालेंगे, समाज को तोड़ेंगे, आग लगाएंगे, बीजेपी का एक सीट बढ़ाने की कोशिश करेंगे। एक आखिरी सवाल सर, बीजेपी का ये आरोप है कि एक तरफ जहां कांग्रेस 60% कन्नड़ा बोर्ड लाने की बात करती है, कन्नड़ा फेस बन रही है, तो वहीं राज्यसभा के लिए एक आउटसाइडर को लाया गया, अजय माकन को। क्यों ना एक कर्नाटका के ही किसी व्यक्ति को जो है मौका दिया जाता? बीजेपी डिक्टेट नहीं कर सकती कांग्रेस किसको लाए। कांग्रेस पार्टी खुद का डिसीजन लेगी, खुद का फैसला लेगी और हमने इस बार माइनॉरिटीज़ को बजट क्या हुआ है और इस बार एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई कि वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए दिए और अपोजिशन ने इसको उठाया है, उसके बारे में क्या कहते हैं? माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत अच्छा बजट दिया गया है। 3,500 करोड़ के करीब माइनॉरिटीज़ को मिलेंगे और माइनॉरिटीज़ SC ST और बैकवर्ड क्लासेस के साथ इंसाफ किया गया है। ये हमारा बजट का सबसे बड़ा आज हाईलाइट है। सर, अभी ये लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन आ रहा है इसलिए पॉपुलिस्ट बजट है और एक अपीसमेंट बजट है और बीजेपी कहने दीजिए, सामाजिक न्याय, सब समाज को साथ लेकर, सब धर्म को साथ लेकर चलना कांग्रेस पार्टी का एक प्रिंसिपल है, हमारी आइडियोलॉजी है। हम लेके जाएं, उन्हें अपीसमेंट लगे कि हमने SC ST समुदाय को ज़्यादा पैसा दिया, उनका टेक केयर कर रहे हैं, बैकवर्ड क्लासेस को हमने पैसा दिया, टेक केयर कर रहे हैं, माइनॉरिटीज़ को दिया, उनको लग रहा है अपीसमेंट है। तो समाज के कमज़ोर तबके को उभारना, उनको मजबूत रखना कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी है। लास्ट ईयर से कितना ज़्यादा हुआ है बजट माइनॉरिटीज़ को? बहुत ज़्यादा हुआ है। और लास्ट ईयर का ये मालूम हुआ कि लास्ट ईयर का बजट खर्चा नहीं हुआ, तो इस बार कैसा खर्चा करेंगे और कौन के लिए? मिनिस्टर साहब से पूछिएगा जो डिपार्टमेंट बजट पेश हुआ है, तो इसके बारे में क्या कहते हैं, कैसा है बजट? और आप BDA के चेयरमैन भी हैं, बेंगलुरु को क्या मिला है? क्या बजट एक पॉपुलिस्ट बजट है? नहीं, बहुत अच्छा बजट है। देखिए, 15th बजट हमारे सिद्धरामैया साहब आज हिस्टोरिकल है। मेरे ख्याल से कोई भी इतना बजट एक स्टेट का कभी किया नहीं है, तो बहुत अच्छा है। उनका एक्सपीरियंस है, बहुत मेहनत करके बजट को लेकर आए, पूरा गारंटीज को भी दे रहे हैं और नया स्कीम्स भी दिया है और सबको भी, सभी लोगों को फायदा हो रहा है इस बजट। बेंगलुरु के लिए क्या दिया है? बेंगलुरु के लिए भी एडिशनल बहुत प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। ब्रांड बेंगलुरु के लिए बहुत सारे चीज़ आ रहा है। अभी बेंगलुरु के लिए अलग ही कर रहे हैं, वो तो हम आप बजट में अनाउंसमेंट में भी है, विदाउट अनाउंसमेंट ऑल्सो देयर लॉट ऑफ स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स गोइंग टू कम। सर, माइनॉरिटी मिनिस्टर्स ने जाके सिद्धरामैया को मिलकर 10,000 करोड़ रुपए की मांग की। ये कितने करोड़ बजट माइनॉरिटीज़ के लिए सैंक्शन? नहीं, हम 10 करोड़ का मांग नहीं करे। वो सिद्धरामैया साहब बोले थे 5 साल में हम माइनॉरिटी का अलॉटमेंट 10 करोड़ तक, 10,000 करोड़ तक लेकर जाएंगे। लास्ट 6 महीने 8 महीने का था तो 2,000 करोड़ मिला। मेरे ख्याल से इस बार हमारे को 3,000 प्लस करोड़ 3,500। हाँ, इस बार मिलेगा। आगे नेक्स्ट ईयर और बढ़ेगा तो 5 साल में 10,000 करोड़ होगा। तो बीजेपी ये कर रही है कि अपीसमेंट है, मुसलमान को दे रहे हैं, वक्फ बोर्ड को दे रहे हैं और सिर्फ मुसलमान को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बीजेपी देखिए काली पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मुसलमान को भी देना है, जैन को भी देना है, सिख को भी देना है, क्रिश्चियन को भी देना है, हिंदू को भी देना है, सबको देना है। बजट है सबके लिए, इसमें बाकी लोगों को कुछ नहीं है क्या? ये लोग क्यों कम्युनल करते हैं? ये लोग क्यों पॉलिटिक्स कर रहे हैं? ये नहीं करना चाहिए, सबको है। देखकर
ये लोग की समझना चाहिए, सभी लोगों का बजट है ये ऐसा कुछ अलग नहीं है। 3 लाख और बजट में खाली 2000 कुछ 3500 करोड़ मुसलमान को दिया तो अपीसमेंट हो जाता है। सर अभी बीजेपी वॉकआउट कर दिया, ये कह रहा है कि कांग्रेस डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, झूठ फैला रही है सेंट्रल गवर्नमेंट बारे में, जो फंड आना है सेंट्रल गवर्नमेंट से आ गई है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम दिल्ली जाकर जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करके आए हैं, अभी उसके लिए कोई जवाब दिया ये लोग? ये फाइनेंस मिनिस्टर बात किया, उन्होंने बोल रहे हैं कि कर्नाटका गवर्नमेंट सिद्धरामैया झूठ बोल रहे हैं। नहीं, हम जब देखिए वो एक वाइट पेपर निकलने दो, हमारा गवर्नमेंट को कितना पैसा दिया, हमें कितना ये करे कर, तो लेट देम टेल। वो कौन रोक रहे उनको? हुकूमत उनके पास है, पावर उनके पास है, उतना करने के लिए उनको क्या तकलीफ है? अगर हमें दिया है होता तो हम कैसा जाकर पूछते? वो लोग बोलना ना हम किधर दिया कैसा दिया करके बोलना चाहिए। और हम लड़ रहे हैं हमारा इस मुल्क स्टेट का पैसे के लिए, हमारे लोगों के पैसे के लिए, हमारा टैक्स जो हम देके हाँ, हम जो दिया है वो हम एडिशन के लिए नहीं पूछ रहे उनसे। हमारा जो शेयर आना है, कमिटमेंट है वो, फेडरल सिस्टम का कमिटमेंट, जो टैक्स कलेक्ट होगा इतना परसेंटेज आपको आएगा, वो नहीं आया है। सर ओवरऑल बजट आप खुश हैं? और जो 3500 करोड़ मुसलमान को दिए हैं, माइनॉरिटीज़ को दिए हैं, पिछले साल जो माइनॉरिटी को पैसे देते वो खर्चा नहीं हुए और बहुत लोग को नहीं मिला, तो इसके बारे में कैसा करते हैं कि कैसा स्कीम बनाते हैं? अभी खर्चा कर किए हैं और भी करेंगे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और हमें और भी ज़्यादा देना चाहिए था, लेकिन जो भी मिला इट इज़ वेरी गुड, इट इज़ नाइस, एंड वी विल यूज़ दैट, एंड मे बी इन बिटवीन बीच में अगर खर्च हो गया तो और पूछेंगे हम। तो आप खुश हैं टोटल? इट्स गुड बजट। थैंक यू। पेश किए हैं इस बजट के बारे में आपका क्या कहना है सर? मैं सभी को आदाब, क्योंकि इस बार का बजट बहुत ही बढ़िया बजट है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सिद्धरामैया साहब बहुत ही एक्सपीरियंस, मोस्टली 15वां बजट 15th बजट दे रहे हैं, 15वां बजट दे रहे हैं, और सभी समाज को लेके, सभी इसमें किसानों को लेके, नौजवानों को लेके, महिला को लेके, ऑल डिपार्टमेंट, हेल्थ, एजुकेशन रिलेटेड, माइनर एजुकेशन रिलेटेड, इस तरह से सभी को इसमें कवर किए हैं, और बहुत ही अच्छा बजट है। गरीबों के लिए बहुत अच्छा है, माइनॉरिटीज़ के लिए कितना? माइनॉरिटीज़ के लिए भी बहुत ही अच्छा बजट दिया है, ऑल सेक्शन कवर किए हैं। नए अभी डिटेल से अभी ये बजट चल रहा है, अभी तो एक दोपहर के बाद करेक्ट रिलीज होगा। सर आप हज के मिनिस्टर हैं, इस बार हज के इंतजाम कैसे कर रहे हैं? कितने हाजी जा रहे हैं एक ज़रा बता दिए था, और उसके वास्ते कितना बजट? नहीं, कम से कम अभी इस बार तो 10,500 हाजी जा रहे हैं, और 2000 हाजी वेटिंग में है। मैं समझता हूँ वेटिंग लिस्ट भी कंफर्म होगी, और इस बार बहुत ही अच्छी तरीके से इंतज़ाम हुआ है। पिछली बार भी अच्छा हुआ था, उससे बढ़ के ये बार इंतज़ाम हुआ। सर जो पैसों का मामला है उसके कुछ ये बार ज़्यादा हो गई क्या फीस हज कमेटी की? एक बार बहुत लोग बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा हो गई, तो फिर इस बार कुछ बढ़ाए हैं या कम घटाए? नहीं, ऐसी सेम फीस है, नहीं बढ़ा इस बार।